आज दिन रविवार को सुबह 5 बजे बल्टाना निवासियों ने इकट्ठे होकर आरएसएस की शाखा जो कि बल्टाना के सरकारी स्कूल में चल रही थी, उसका विरोध किया। बल्टाना निवासियों का कहना है कि यह सरकारी स्कूल है और इस सरकारी जमीन को किसी भी संस्था या किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिस पर केंद्र सरकार के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ शांतिपूर्वक ढंग से नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद रहा। पुलिस प्रशासन ने बल्टाना निवासियों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इस गंभीर समस्या का हल निकालेंगे। प्रेस रिलीज पढ़ी कल की प्रेस रिलीज में कहते हैं कि ये टकराव की स्थिति। अरे टकराव की स्थिति तुम कौन सा सत्संग कर रहे हो अंदर बैठ के? दुनिया भर के दंगों की बातें करते हैं ये लोग। ये सत्संग कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये राम भजन करना चाहते हैं ना, अगर ये राम भजन करना चाहते हैं तो ये हमारे सिख भाई जो है बगल में गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारे में जगह दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਆਪੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਇਹ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਲਟਾਣਾ ਦੇ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਆਰਐਸਐਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਟਾਊਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਸ਼ਾਖਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਸਰ, ਡੇਲੀ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, 2 ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। 2 ही दिन होए। थैंक यू। सर आपका नाम क्या है? गुरमिंदर सिंह। सर आज का जो प्रोटेस्ट है जो सुबह 5:30 बजे शुरू हो गया था, 5 से 5:30 के बीच में शुरू हुआ था, उसके बारे में बताइए। इतनी जल्दी प्रोटेस्ट सुबह प्रोटेस्ट किया गया, किस वजह से, क्या उद्देश्य है उसके पीछे? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਲਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਬੜੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਠ ਪੂਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਾਲਾ ਖਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ RSS ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲ सुने। थैंक यू जी। सर, जो RSS के लोगों के ऊपर जो आपने अभी बातें कही है कि अंदर आके वो प्रैक्टिस करते हैं, सुबह सुबह जो भी है वो डंडे लेकर आते हैं, क्या उनसे आपको क्या तकलीफ है अगर वो सुबह सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक अगर अंदर प्रैक्टिस करते हैं? तो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੇ 12 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੀ 6 ਵਜੇ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣੇ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਲਟਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਥੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ दी कि ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। सर, अभी इन्होंने बात की है परमिशन की कि RSS वालों को परमिशन दे दी और वो अंदर आके डंडे लेकर प्रैक्टिस करते हैं या कुछ भी करते हैं। क्या आपने कभी परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया? देखो जी, मेरे बहुत सारे भाई यहाँ से किसान मोर्चा में हमारे नौजवान किसान जत्थे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हम यहाँ पे आए हमें पता चला, और काफ़ी लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको परेशानी, जो बेसिक परेशानी है वो रास्ता बंद करने से है। इन्होंने परमिशन ली, प्रशासन ने पता नहीं किस आधार पे परमिशन दी। सरकारी ज़मीन है, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल्स में, सरकारी स्टेडियम्स में, सरकारी प्लेग्राउंड्स में पिछले कई सालों से ना तो आप शादी ब्याह की कोई परमिशन मिलती है, ना ही किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम की परमिशन मिलती है। तो इनको परमिशन किस आधार पर दी है प्रशासन ने, हमें इस बारे में कुछ अता पता नहीं है कैसे इनको परमिशन मिल गई। जब कभी किसी और को परमिशन नहीं मिलती तो इनको किस आधार पर परमिशन मिली। और फिर इन्होंने यहाँ पे अगल बगल में बहुत सारी पार्क है, ये इधर बहुत बड़ा पार्क है नाले के उस तरफ जी, वो खेलने के लिए है, योगा करने के लिए है, सब कुछ करने के लिए बना हुआ है। वहाँ इन्होंने क्यों नहीं की अपनी शाखा? इन्होंने यहाँ गुरुद्वारे के बगल में आके शाखा क्यों की है? ये सोचने वाली बात है और इस पे प्रशासन को भी सोचना चाहिए। हम मिन्नतें कर रहे हैं प्रशासन को, प्रशासन हमारे लिए यहाँ पे बैरिकेड्स लगा के बॉर्डर बना रहा है। ये कौन सा तरीका है? ये गुरुद्वारे के बिल्कुल बगल में इन लोगों ने अपनी शाखा लगाकर ये हिंदू सिख भाईचारे का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। लठ लेके राम भजन कौन करता है, आप मेरे को ये बताओ। लठ लेके राम भजन कहाँ देखा है आपने होता हुआ? RSS बीजेपी की अपनी विंग है। बीजेपी इसी RSS से पैदा हुई है, इसी की नफरत से पैदा हुई है, इसी के ड्रामों से पैदा हुई है। तो ये जो बीजेपी के पिट्ठू हैं, ये अपने आप को राम भजन के नाम पे, ये राम का नाम तो बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। अगर ये राम भजन कर रहे हैं, इनको कहीं और जगह नहीं मिलती, तो यहाँ पे तो शरारती लोग भी आते होंगे शाम को इधर उधर, क्योंकि इधर कभी गेट खुला रह जाता होगा तो कई बार तो लोग दारू भी बैठ के पीते होंगे। जो जिस जगह पे दारू लोगों ने बैठ के पी रखी होगी, बीड़ी पी रखी होगी, सिगरेट पी रखी होगी, उस जगह पे राम का भजन करना तो राम के भजन का अपमान नहीं है क्या? उसके लिए तो पवित्र जगह चाहिए ना। जैसा जो है बड़े भाई साहब ने कहा, तो पवित्र जगह अगर इनको नहीं मिल पा रही है साफ जगह, तो गुरुद्वारे में राम भजन हम करने के लिए जगह दे देंगे। लेकिन ये क्या तरीका हुआ? कई भाई ऐसे हैं जो इस तरफ से आते हैं गुरुद्वारे में, इन्होंने वहाँ बैरिकेटिंग कर रखी होती है, उधर से रास्ता बंद कर रखा होता है, इन्होंने यहाँ से भी रास्ता बंद कर रखा होता है, बैरिकेटिंग कर रखी होती है, वहाँ गुरुद्वारे के अंदर जाने का रास्ता बंद कर रखा होता है। ये केवल और केवल धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिशें हैं, वरना इतना बड़ा पार्क है, वहाँ जाके जो मर्जी करते रहेंगे लोग। ये राम भजन है? ये राम भजन नहीं होता। तो ये राम भजन के लिए फिर ये पुलिस के डंडों की लाठियों की क्या ज़रूरत है? अगर राम भजन कर रहे हो भाई, तो हमें भी आने दो ना अंदर, हम भी आपके साथ बैठ के राम भजन कर लेते हैं। ये इतनी इस पाकिस्तान का बॉर्डर क्यों बना रखा है यहाँ पे? मतलब इन्हीं के गांव का स्कूल, इन्हीं के गांव का मोहल्ला, इन्हीं के आसपास की जगह
मतलब हम काम करने के लिए, खेलने के लिए तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो भी तो यहीं के ही होंगे सर, बल्टाना निवासी होंगे ना वो भी। उनके हमने इसीलिए आज पुलिस को कहा कि इनके आधार कार्ड चेक करो। आधे तो 20 सेक्टर वाले हैं, आधे ये 19 सेक्टर वाले हैं, और आधे से ज़्यादा भाई साहब पता नहीं कहाँ से हिमाचल से आ रखे हैं। इनके आधार कार्ड चेक करो, अभी पता चल जाएगा कितने हैं। और हमारे आधार कार्ड चेक कर लो भाई, किसी के पास आधार कार्ड है अभी सुबह सुबह अगर कोई लाया हो तो हमारे बंदे नहीं बुला, यहीं पड़े हुए हैं। ये देखो शक्ल दिखा दे अपनी, आजा बल्टाना SS नगर मोहाली पंजाब 140604। देखो जी लोकल है ना। तो जब ये हमारे हम लोगों के आधार कार्ड हम लोग चेक कर लो भाई, और इनके आधार कार्ड चेक कर लो। तो आप क्या चाहते हैं कि ये लोग, हम ये चाहते हैं जब तक किसानी संघर्ष वहाँ चल रहा है तब तक इन जैसे शरारती तत्वों को इस तरह की शरारत करने की इजाज़त ना दी जाए। ये कोई तरीका नहीं है, ये सौहार्द को बिगाड़ने की काम कर रहे हैं, ये हिंदू सिख भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कोई राम भजन नहीं होता। ये यहाँ पे आके तोड़ मरोड़ के चीज़ें बताते रहते हैं कि फलाना जो धर्म है, ये एक ख़ास तबके के बारे में बहुत गलत बातें करते हैं। उसने उस तबके के तो सारे लोग ही गद्दार हैं। अरे भैया ये ऐसे कैसे हो गया? कौन सा इतिहास है जो तुम लोगों ने पढ़ा? लेकिन RSS वाले तो बोलते हैं कि हिंदू सिख भाईचारा तो बहुत गूढ़ा है, बहुत नरम है, बहुत ज़्यादा बना हुआ है आज की डेट में। अगर बना हुआ है तो कल से शाखा में हमें भी बैठने दो, हम भी देखें कौन सा राम भजन करते हैं। वहाँ ये भी बोल रहे हैं और हम भी बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे। फिर भी हम में से कौन ऐसा है जो लठ लेके आया हुआ है? एक भी दिखा दो। ये इतने बड़े बड़े मोटे मोटे लठ क्यों लेके आते हैं? और अगर हिंदू RSS जो है वो ये कहती है कि हिंदू सिख भाईचारा बहुत पुराना है, हाँ है। RSS और सिख भाईचारा तो नहीं है ना। अगर RSS और सिख भाईचारा होता तो ये वहाँ बैठे हुए सिख भाइयों को वहाँ पे ये खालिस्तानी बोलते, जो अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। RSS खुद वहाँ पर लठ लेके आई थी और इनके पथराव करके गई है। हम केवल और केवल ये कहते हैं कि भैया अगर ये कहते हैं कि ये हमें अपना भाई मानते हैं तो फिर ये बैरिकेडिंग हटा दे। हम कोई लठ लेके नहीं आएंगे, ये तो लठ लेके बैठे होते हैं। हम कोई लठ लेके नहीं आएंगे, हम देखेंगे, हम भी रोज़ शाखा लगाएंगे। ये भी बोल रहे और हम भी बोल रहे हैं, हमें भी बोलने दें, फिर अपनी बात हमें भी रखने दें। ये जो बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं ना, ये ब्रेन वॉश जो करते हैं, वो ब्रेन वॉश हम ऐसे नहीं होने देंगे बच्चों का। बच्चों की उम्र फिर ये अच्छा बच्चों की उम्र भी बता देता हूँ, 15 साल, 16, 18, 19, 20, 21, उससे कम भी छोटे बच्चे भी होते हैं। छोटे बच्चे ये जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ जाके ये लोगों को भड़काते हैं, उनके धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, फिर उसको वोट में इनकैश करते हैं। और अभी MC इलेक्शन है और आपको पता है किसान धरना जो है वो किसान जो रोष है वो पिछले 6 महीनों से चल रहा है। हमारा कोई आज का तो है नहीं, और हमारा तो इलेक्शन के बाद भी चलेगा। लेकिन ये इलेक्शन के टाइम पे ही राम भजन करते हैं, ये इनका तरीका है। ये अभी से शुरू हुआ या कंटिन्यू काफ़ी टाइम से? अभी शुरू हुआ है ये अब जब इलेक्शन आया ना पास में, तो कुछ इलेक्शन पास में आया तो इन्होंने पहले मार्किंग की है पूरे ज़ीरकपुर में कि कहाँ कहाँ जो है अगर कहीं मस्जिद है तो उसके आसपास का कोई अगर ग्राउंड है तो वो कब्जा लो शाखा के लिए, गुरुद्वारा है तो वो कब्जा लो। तो ये सिर्फ टेंशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, वरना इतने बड़े बड़े पार्क छोड़ के ये अपना चाहे सारी शाखा मंडली लेके आ सकते होंगे। उसमें ये जो पार्क है, बड़े सारे पार्क हैं, उधर ममता में भी बड़े पार्क हैं, उधर आसपास बहुत जगह खाली पड़ी हुई है। इन्होंने वो वहाँ पे क्यों नहीं किया, यहीं ही क्यों किया? क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। गुरुद्वारे के बिल्कुल बगल में आके ये हुई है, ये राम भजन है। ये राम भजन नहीं है। राम भजन होता है शांति से, एकाग्रता से, प्रेम से। और अगर ये प्रेम से राम भजन करना चाहते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब में भी अनेक बार राम का नाम है। हमको ऐसा लगता है कि राम भजन वहाँ नहीं कर सकते, ये मंदिर में नहीं कर सकते, जो कि पवित्र जगह है, साफ़ होती है, सुथरी होती है। कोई वहाँ बीड़ी नहीं पी के गया होता, कोई वहाँ सिगरेट नहीं पी के गया होता, कोई वहाँ पे दारू नहीं पी के गया होता। यहाँ तो तरह नाले की बदबू भी आती है, ठीक है। फिर ऊपर से यहाँ तो शाम को लोग बैठ के, कई बार ये होता दरवाज़ा खुला रह जाए तो अंदर बैठ के दारू भी पी लेते हैं। जहाँ दारू पी होती है वहीं बैठ के ये फिर राम भजन करने बैठ जाते हैं सुबह आके। तो ये राम के भजन का अपमान नहीं है क्या? पर असल बात ये है, ये राम भजन करते ही नहीं है। लठ के साथ राम भजन नहीं होता। बंद करो RSS दी शाखा, बंद करो साडा स्कूल खाली करो, साडा स्कूल खाली करो, पिंड दा स्कूल खाली करो, बल्टाना पिंड दा स्कूल खाली करो, बल्टाना पिंड दा स्कूल खाली करो।